هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے مخارج الحروف۔ والیوم 1 میں ہم نے پڑھ لیا تھا حروف تہجی یعنی عربک الفابٹس 29 ہوتے ہیں، اور اگر ہم حمزہ نکال دیں تو 28 ہوں گے۔ اب یہ 29 حروف تہجی 5 مین مخارج میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ پہلا الجوف، منہ کا خالی حصہ، the hollow space اور the exterior chest area۔ دوسرا الحلق، اردو میں بھی حلق ہی کہتے ہیں، the throat۔ تیسرا اللسان یعنی زبان، the tongue۔ چوتھا الشفتین یعنی 2 ہونٹ، the lips۔ عربک میں شف کہتے ہیں ہونٹ کو، لپ کو۔ ایک لپ یعنی شف، 2 لپس یعنی شفتین۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، ایک زبر ہوتا ہے فتحہ اور 2 زبر ہوتے ہیں فتحتین، ایک زیر ہوتا ہے کسرہ اور 2 زیر ہوتے ہیں کسرتین، ایک پیش ہوتا ہے ضمہ اور 2 پیش ہوتے ہیں ضمتین، فتحتین، کسرتین، ضمتین۔ اسی طرح ایک ہونٹ ہوتا ہے شف اور 2 ہونٹ ہوتے ہیں شفتین۔ پانچواں الخیشوم یعنی ناک کا باسا، the nasal cavity، جو استعمال ہوتا ہے غنہ کے لیے۔ مزید ہم ڈیٹیلز پڑھیں گے۔ اب ان 5 مین مخارج کو مزید تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مخرج الجوف کے مزید کچھ پوائنٹس۔ الجوف مطلب منہ کا خالی حصہ، the hollow space۔ اسپیسیفک مخرج 1 ہوتا ہے، حروف 3 جس سے نکلتے ہیں۔ عربک ٹرمز الحروف الجوفیہ، الحروف الحوائیہ یا پھر الحروف المدیہ۔ مخرج کی ٹائٹلز اور اس کا ریزن کیا ہے؟ جوفیہ کیوں کہتے ہیں؟ جوف سے نکلتے ہیں، یعنی جوف جو منہ کا خالی حصہ ہے وہاں سے نکلتے ہیں۔ مدیہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ حروف مد ہیں۔ ہوائیہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ایری لیٹرز ہیں، یعنی ان 3 حروف کا تعلق نہ تو زبان سے ہے، نہ دانت سے ہیں، نہ ہونٹ سے ہیں، نہ حلق سے ہے۔ گروپنگ آف لیٹرز ہم نے پہلے بھی کیا تھا تجوید القرآن میں۔ اب دیکھتے ہیں گروپنگ آف لیٹرز عربک ٹرمز کے حساب سے۔ مخرج 1 الجوف، الجوف کے لیٹرز ہیں الف مد، الف جس سے پہلے زبر ہو، واو مد، واو جس سے پہلے پیش ہو، یا مد، یا جس سے پہلے زیر ہو، یعنی الف سے پہلے فتحہ، واو سے پہلے ضمہ، یا سے پہلے کسرہ۔ یہ پوائنٹس تو ہمیں معلوم ہے، آلریڈی ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اب دیکھتے ہیں الحلق کے مزید کچھ پوائنٹس۔ حلق کا مطلب ہے the throat۔ اسپیسیفک مخرج 3 ہوتے ہیں جن سے نکلتے ہیں 6 حروف۔ عربک ٹرمز ہیں الحروف الحلقیہ۔ مخرج ٹائٹل اور ریزن ہے
हलकिया क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हलक से निकलते हैं। ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स अरबिक टर्म्स के हिसाब से अल हलक, मखरज नंबर 2 अक्सल हलक, एंड ऑफ द थ्रोट जो सीने की तरफ है उससे निकलते हैं हमजा और हा। अक्सा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंड है, एंड ऑफ द थ्रोट। मखरज नंबर 3 वसत अल हलक, मिडल ऑफ द थ्रोट जो दरमियानी है उससे निकलते हैं दो हर्फ आइन और हा। वसत यानी मिडल, सेंटर। मखरज नंबर 4 अदनल हलक, अपर थ्रोट जो मुंह के करीब है उससे निकलते हैं दो हर्फ गैन और खा। अक्सा यानी एंड, वसत यानी मिडल, अदना यानी अपर। तो हमने पढ़ा यहाँ अल हलक में 6 लेटर्स हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, जिनको हुरूफ अल हलकिया कहते हैं। तीसरा मखरज अल लिसान के मजीद कुछ पॉइंट्स। अल लिसान मतलब जबान, द टंग। स्पेसिफिक मखरज 10 मखरज हैं जिनसे निकलते हैं 18 हुरूफ। हुरूफ की टाइटल्स और अरबिक टर्म्स ये हैं अल हुरूफ अल लहविया, अल हुरूफ अल शजरिया, अल हुरूफ अल ज़लकिया, अल हुरूफ अल नतइया, अल हुरूफ अल लफ़विया, अल हुरूफ अल असलिया। अरबिक टर्म्स थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम लेटर्स पढ़ेंगे और हर एक हर्फ का मखरज देखेंगे तो इंशाअल्लाह हम ये टर्म्स भी आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग्स देखते हैं। लुहा यानी परजीव, यूव्यूला, शजरल फम यानी मुंह के अंदर का हिस्सा जिसको तालुक कहते हैं, और अपर पैलेट, ज़लक यानी जबान का ऊपरी हिस्सा, नतलहंक यानी ऊपर के दांतों के मसोड़ों की जड़, लुस यानी मसोड़े, असतल लिसान यानी नोकदार जबान। लहविया इसलिए कहते हैं क्योंकि लुहा से निकलते हैं, शजरिया कहते हैं क्योंकि शजरल फम से निकलते हैं, ज़लकिया कहते हैं क्योंकि जबान के ऊपरी हिस्से से निकलते हैं, नतिया कहते हैं क्योंकि ऊपर के दांतों के मसोड़ों की जड़ से निकलते हैं, लसविया कहते हैं क्योंकि मसोड़ों के करीब से निकलते हैं, असलिया कहते हैं क्योंकि नोकदार जबान से निकलते हैं। ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स अरबिक टर्म्स के हिसाब से अल लिसान डिवाइडेड है। अक्सल लिसान पहला ग्रुप जो एंड ऑफ द टंग से निकलते हैं, हुरूफ अल लहविया। मखरज नंबर 5 जबान की जड़ और परजीब के अंदर से निकलता है हर्फ कौफ। मखरज नंबर 6 जबान की जड़ और परजीब के बाहर से निकलता है लेटर कैफ। लिसान के मजीद कुछ पॉइंट्स। ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स अरबिक टर्म्स के हिसाब से मखरज नंबर 7 वसत लिसान मिडल ऑफ द टंग से निकलते हैं अल हुरूफ अश-शजरिया, दरमियानी जबान और उसके ऑपोजिट अपर तालु पैलेट से निकलते हैं जीम, शीन, या गैर मदिया। या गैर मदिया क्यों कहते हैं यहाँ? क्योंकि ये मद लेटर नहीं है, इस पर सुकून नहीं होगा। मखरज नंबर 8 हाफत लिसान साइड ऑफ द टंग के इस्तेमाल से निकलता है लेटर द्वाद जिसका टाइटल नहीं है, ला लकब है, नो टाइटल गिवन, क्योंकि ये 2 जगह से निकलता है, एक स्पेसिफिक जगह नहीं है इसकी। शजरिया इसलिए क्योंकि अगर द्वाद दोनों साइड से पढ़ा जाए। हाफत लिसान इसलिए क्योंकि हाफत जबान के साइड्स को कहते हैं, जबान के राइट या लेफ्ट साइड और उसके ऑपोजिट ताड़ों से निकलता है द्वाद। द्वाद दोनों साइड से पढ़ा जा सकता है लेकिन वन एट अ टाइम, एक साइड ही इस्तेमाल होगी। अगला है तरफल लिसान, टिप ऑफ द टंग, जिनसे निकलते हैं अल हुरूफ अल ज़लकिया। मखरज नंबर 9 जबान के साइड्स और नोक और ऊपर के दांतों के मसोड़ों की जड़ से निकलता है लाम, जिसकी वजह से इसका मखरज हाफत लिसान भी है। यानी 2 नाम हैं लाम के, तरफल लिसान और हाफत लिसान, जिसकी वजह से इसका मखरज हाफत लिसान भी है। मखरज नंबर 10 जबान की नोक और ऊपर के 2 दांतों के मसोड़ों की जड़ से निकलता है नून। मखरज नंबर 11 जबान की नोक का पिछला हिस्सा ऊपर के 2 दांतों के मसोड़ों की सख्त जड़ से निकलता है रॉ। तो ये 3 लेटर्स लाम, नून, रॉ निकलते हैं तरफ लिसान से, टिप ऑफ द टंग से, लेकिन लाम हाफत लिसान के इस्तेमाल से निकलता है। साइड्स ऑफ द टंग भी इस्तेमाल होते हैं जब वो एलिवेट होती है ऊपर की तरफ, लेकिन
मसूड़ों की जड़ को टच सिर्फ जबान की नोक लगेगी। अगर साइड्स ज्यादा लग जाएं तो वो थिक साउंड हो जाएगा। साइड्स एलिवेट होंगे लेकिन लगेगी नहीं। इन 3 लेटर्स को पहचानने के लिए एक बहुत सिंपल सी टिप है। लाम जबान की बारीक नोक जब ऊपर की तरफ मसूड़ों की जड़ को लगती है तो तब निकलता है लाम, और इस जगह के इमीडिएटली पीछे जब जबान की नोक ऊपर के 2 दांतों के मसूड़ों की जड़ से लगेगी तो वहां से निकलता है नून, और उसके पीछे नून के पीछे यानी लाम, लाम के पीछे नून, नून के पीछे रॉ। जबान की नोक का पिछला हिस्सा, थोड़ा सा पिछला हिस्सा अब जाके लगेगा सेम उसी जगह ऊपर के 2 दांतों के मसूड़ों की सख्त जड़, थोड़ी सी हार्ड एरिया जो होती है वहां लगेगा, तब निकलता है रॉ। तो आसानी से याद रखें, पहले लाम, फिर नून, फिर रॉ। अगला मखरज है तरफल लिसान से ही निकलते हैं कुछ और मजीद हुरूफ। मखरज नंबर 12 अल हुरूफ नतय्या, जबान की नोक से निकलते हैं ता, दल, तो। ये सिमिलर टू लाम, नून, रॉ है, लेकिन जबान की नोक ऊपर के 2 दांतों द हार्ड एरिया से निकलेंगे ता, दल, तो। रॉ जबान की नोक का पिछला हिस्सा लगता है ऊपर के 2 दांतों की जड़ को, और ता, दल, तो जबान की नोक ऊपर के 2 दांतों की जड़ से डायरेक्टली लगता है। इन 3 हरफ को अल हुरूफ नतय्या कहते हैं क्योंकि ये नतल हंक से पढ़े जाते हैं। मखरज 13 अल हुरूफ लसविया, जबान की नोक और ऊपर के 2 दांतों के किनारे से निकलता है सा, दाल, ज़ो। जबान की नोक का थोड़ा सा हिस्सा दांतों को लगते हुए बाहर आएगा। सा, दाल, ज़ो। ज़ो हैवी लेटर है, तो हैवी लेटर है। मखरज नंबर 14 अल हुरूफ अल असलिया, निकलते हैं जबान की नोक और नीचे ऊपर के 4 दांतों के अंदर से। स्वाद, ज़ा, सीन। स्वाद भी हैवी लेटर है जैसे तो और ज़ा, और सीन बारीक लेटर है। चौथा मखरज है शफतैन। शफतैन मतलब 2 होंठ, द लिप्स। स्पेसिफिक मखरज 2 हैं जिनसे 4 हुरूफ निकलते हैं, अल हुरूफ शफविया कहते हैं। मखरज, टाइटल और रीजन। शफविया क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों होंठ से निकलते हैं, दोनों होठों का इस्तेमाल होता है 4 हुरूफ पढ़ने के लिए। अल हुरूफ शफविया। मखरज नंबर 15 नीचे के होंठ के अंदरूनी वेट हिस्से और ऊपर के 2 दांतों के किनारे से। मखरज नंबर 16 से निकलते हैं 3 हुरूफ बा, मीम, वाऊ, गैर मदिया। दोनों होठ का मॉइस्ट हिस्सा स्ट्रॉन्गली मिलाने से निकलता है बा, दोनों होठ का सूखा हिस्सा टाइटली मिलाने से निकलता है मीम, दोनों होठ को फैलाकर गोल करने से निकलता है वाव। वाव गैर मदिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ वाव के ऊपर सुकून नहीं है, ये वाव मदिया नहीं है। यानी शफतैन के 2 मखरज और निकलते हैं 4 हुरूफ। 5वां मखरज है अल खैशूम। खैशूम मतलब नाक का बासा, द नेजल कैविटी। स्पेसिफिक मखरज है सिर्फ एक ही मखरज। हुरूफ के टाइटल्स और अरबिक टर्म्स ये हैं। 2 हुरूफ निकलते हैं जिनको अल हुरूफ अल गनविया कहते हैं। मखरज, टाइटल और रीजन। गनविया क्यों कहते हैं? क्योंकि नाक के बासे से निकलते हैं और इन 2 हुरूफ में गुन्ना भी होता है। नाक के बासे से जो आवाज निकलती है उसे गुन्ना कहते हैं। अल गनविया नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद है। मखरज नंबर 17 जिनसे निकलता है पहला हर्फ नून मुशद्दद, इसको हर्फ अल अगन भी कहते हैं, यानी नून मुशद्दद या हर्फ अल अगन। जबान की नोक और ऊपर के 2 दांतों के मसूड़ों की जड़ के पीछे से, यानी ये नून का मखरज है जो हमने पहले पढ़ लिया है, उसके साथ साथ और नाक के बासे से इसकी आवाज निकलती है। यानी गुन्ना करते वक्त नाक के बासे में 1 काउंट होल्ड होगा, जैसे इन्ना। हर्फ अल गुन्ना यानी मीम मुशद्दद, दोनों होठ का सूखा हिस्सा टाइटली मिलाने से मीम अदा होता है। मीम मुशद्दद भी इसी तरह अदा होगा और नाक के बासे से इसकी आवाज निकलती है, जैसे इम्मा। मखारिज अल हुरूफ में हमने अब तक पढ़ा 29 हुरूफ तहजी जो क्लासिफाइड हुए 5 मेन मखारिज में, फिर से मजीद क्लासिफाइड हुए 17 मखारिज में।
الحمدللہ یہاں ہمارا مخارج الحروف کا لیسن ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.